वेलकम टू जीएन ग्रुप एडवाइजरी। आज मैं आपको पी रेशो के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि फंडामेंटल इंडिकेटर है और मार्केट मूवमेंट के बारे में हमें बताता है। चलो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। व्हाट इज़ पीई? प्राइस टू अर्निंग्स। द प्राइस टू अर्निंग्स पी रेशो नोन एज मूल्य आयोग पी अनुपात इन हिंदी इज अ फाइनेंशियल metric used to evaluate the relative value of a company's stock in relation to its earnings. It is calculated by dividing the market price per share by the earnings per share. The PE ratio indicates how much investors are willing to pay for each unit of earnings generated by the company. Now we understand PE ratio as a layman or as a kid as follow. P/E ratio means price to earnings ratio. It tells about the current position of the stock, whether it is cheap or costly. In technical words, we use term this stock is undervalued or overvalued. Price to earnings ratio indicates us what is the price of stock and what we are paying for it. Let's understand through an example. What is what is favorable or fair price of potato per kg for someone? It may be rate 10, 15, 20 per kg. Now the question arises, what price are you paying to buy a kg potato? If you are buying, if you are paying more than 20 rupees per kg potato, then you are buying it on overvalue price, means very costly price. Its fair price would be rate 20 per kg. You are paying more than its price. But if you are paying less than 20 per kg for a potato, it means you are buying it at undervalue price, means very cheap price. In the same way, if we say property price 1 lakh per square feet and it per square feet is a fair price, and if someone pays 1 lakh 20,000 per square feet, it means he is getting this property at overvalue price. And if someone bought at 80,000 per square feet, it means he is getting this property at undervalue price because fair price of this property is 1 lakh per square feet. This buying price can create huge difference between these two types of person. In future, if property price increases to 2 lakh 50,000, 2 lakh 40,000 per square feet, then person A doubled his returns, but person B tripled his returns. In investment, this thumb of rule plays very important role. According to me, you have to follow price earnings ratio rule and create history. In the Indian market, here are a few examples of companies with their respective PE ratios. Reliance Industry Limited RIL. The PE ratio for RIL might be around 25. This means investors are willing to pay 25 times the earnings per share for the company's stock. Tata Consultancy Services Limited (TCS). TCS may have a PE ratio of approximately 30. Investors are willing to pay 30 times the earnings per share for TCS stock. Hindustan Unilever Limited (HUL). HUL could have a PE ratio of around 63. Investors are willing to pay 63 times the earnings per share for HUL stock. It's important to note that P/E ratio can vary over time and across different sectors. A high P/E ratio may indicate that investors have high expectation for future earnings growth, while a low P/E ratio may suggest that the stock is undervalued or that the company's earnings growth prospects are not as favorable. While the P/E ratio is a widely used valuation metric, it should not be the sole factor in making investment decisions. Other factors such as the company's financial health, industry trend, and future growth prospects should also be considered when evaluating an investment opportunity. Now the question arises, what is an ideal PE ratio? The answer for this question depends on many factors. For example, sector performance, macro and micro circumstances, budget, and much more things. According to Benjamin Graham,
and Warren Buffett, the ideal PE ratio is under 10. According to them, when share PE is under 10, then it is undervalued stock. Otherwise, we consider it overvalued stock. We cannot consider only PE ratio for selecting a stock. Some other parameters are EPS, interest coverage ratio, price to book value, and many more should be considered, which we will learn in further videos. मूल्य आयोग अनुपात क्या है? कीमत से कमाई पी अनुपात, जिसे हिंदी में मूल्य आयोग पी अनुपात के रूप में जाना जाता है, एक वित्तीय मैट्रिक्स है जिसका उपयोग कंपनी की कमाई के संबंध में उसके स्टॉक के सापेक्ष मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इसकी गणना प्रति शेयर बाजार मूल्य को प्रति शेयर आय ईपीएस से विभाजित करके की जाती है। पी अनुपात बताता है कि निवेशक कंपनी द्वारा अर्जित कमाई की प्रत्येक इकाई के लिए कितना भुगतान करने को तैयार है। अब हम पी अनुपात को एक आम आदमी या एक बच्चे के रूप में समझते हैं। पी रेशो का मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशो होता है। ये स्टॉक की मौजूदा स्थिति के बारे में बताता है कि यह सस्ता है या महंगा। तकनीकी शब्दों में हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि यह स्टॉक अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशो में बताता है कि स्टॉक की कीमत क्या है और हम इसके लिए क्या भुगतान कर रहे हैं। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि प्रति किलो आलू का अनुकूल या उचित मूल्य क्या है। किसी के लिए 10, 15, 20 रुपए किलो हो सकता है। सवाल उठता है कि आप 1 किलो आलू खरीदने के लिए क्या कीमत चुका रहे हैं। यदि आप 20 रुपए प्रति किलो आलू से अधिक का भुगतान कर रहे हैं, तो आप इसे अधिक मूल्य पर खरीद रहे हैं, यानी बहुत महंगा मूल्य। इसका उचित मूल्य 20 रुपए है। अगर मान लें कि इसका उचित मूल्य 20 रुपए है, प्रति किलोग्राम है, आप इसकी कीमत से अधिक भुगतान कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक आलू के लिए 1 किलो आलू के लिए 20 रुपए प्रति किलो से कम का भुगतान कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप इसे कम कीमत पर खरीद रहे हैं, यानी बहुत सस्ते दाम पर। इसी तरह अगर हम संपत्ति की कीमत 1 लाख रुपए प्रति वर्ग फुट मान लेते हैं कि एक फेयर प्राइस है, और अगर कोई 1,20,000 प्रति वर्ग फुट का भुगतान करता है, तो इसका मतलब है कि ये संपत्ति अधिक कीमत पर मिल रही है। और अगर किसी ने 80,000 प्रति वर्ग फुट पर खरीदी है ये संपत्ति उन्हें कम कीमत पर मिल रही है। खरीद मूल्य इन दो प्रकार के व्यक्तियों के बीच भारी अंतर पैदा कर सकता है। भविष्य में यदि संपत्ति की कीमत बढ़कर 2,40,000 प्रति वर्ग फुट हो जाती है, तो व्यक्ति ए ने अपने रिटर्न को दुगना कर दिया, लेकिन व्यक्ति बी ने अपने रिटर्न को 3 गुना कर दिया। निवेश में यह अनूठा नियम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेरे हिसाब से आपको प्राइस अर्निंग रेशो नियम का पालन करना होगा और इतिहास रचना होगा। भारतीय बाजार में यहाँ कंपनियों के कुछ उदाहरण उनके संबंधित पी अनुपात के साथ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आर आई एल के लिए पीई अनुपात लगभग 25 हो सकता है। इसका मतलब है कि निवेशक कंपनी के स्टॉक के लिए प्रति शेयर कमाई का 25 गुना भुगतान करने को तैयार है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड टीसीएस का पीई अनुपात लगभग 30 हो सकता है। निवेशक टीसीएस स्टॉक के लिए प्रति शेयर कमाई का 30 गुना भुगतान करने को तैयार है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एचयूएल का पीई अनुपात लगभग 63 हो सकता है। निवेशक एचयूएल स्टॉक के लिए प्रति शेयर कमाई का 63 गुना भुगतान करने को तैयार है, 63 गुना। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पी अनुपात समय के साथ और विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न हो सकते हैं। कुछ पी अनुपात ये संकेत दे सकता है कि निवेशक को भविष्य की कमाई में वृद्धि के लिए उच्च उम्मीदें हैं, जबकि कम पी अनुपात ये संकेत दे सकता है कि स्टॉक का मूल्यांकन नहीं किया गया है या कंपनी की आय वृद्धि की संभावनाएं उतनी अनुकूल नहीं है। जबकि पी अनुपात एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वैल्यूएशन मैट्रिक्स है, ये निवेश निर्णय लेने का एकमात्र कारण नहीं होना चाहिए। निवेश के अवसर का मूल्यांकन करते समय कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य, उद्योग के रुझान, भविष्य की विकास संभावनाओं जैसे अन्य कारकों पर भी विचार किया जाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि आदर्श पी अनुपात क्या है? इस प्रश्न का उत्तर कई कारकों पर निर्भर करता है। उदाहरण, सेक्टर का प्रदर्शन, मैक्रो और सूक्ष्म परिस्थितियाँ, बजट और बहुत कुछ। बेंजामिन ग्राहम और वॉरेन बफेट के अनुसार आदर्श पी अनुपात 10 से कम है। उनके अनुसार जब शेयर पी शेयर का पी 10 से कम है, तो ये अंडर वैल्यू स्टॉक है, अन्यथा हम इसे ओवर वैल्यू स्टॉक मानते हैं। हम स्टॉक का चयन करने के लिए केवल पी अनुपात पर विचार नहीं करते, कुछ अन्य पैरामीटर है।
ईपीएस, ब्याज कवरेज अनुपात, मूल्य से बुक वैल्यू और कई अन्य पर विचार किया जाना चाहिए, जो हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए, और अगर पसंद ना आने का कोई कारण समझ आ रहा हो तो डिसलाइक भी ज़रूर करिए, और डिसलाइक का कारण कमेंट कर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। शुक्रिया।